सो निशांत, आपका जेई या फिर पीसीएम में क्या था जो आपका? मैंने जेई मेंस क्वालिफाई करा था और मेरे जेई मेंस में परसेंटाइल इफ आई आस्क अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज, व्हाट्स योर थॉट? फैकल्टी सपोर्टिव है? faculty is very supportive. They are like You can tell me about the average package and its goods in terms of ROI or not? कंपनियां आती हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स के पैकेज लगते हैं हमारे टीचर के, काफ़ी अच्छे पैकेज लगे भी हैं। एडमिशन मोड कहना है। हाँ, एडमिशन मोड या तो आप 4 साल की बीटेक में कैंपस लाइफ मैटर करती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुंतशिर सैफी एंड आज हमारे साथ हैं उसने I am Nishant and I am currently in branch CSE and I am doing specialization in AI. तो निशांत आज हमारे साथ है जो एक रियलिटी बताएंगे एनआईटी ग्रेटर नोएडा के बारे में। क्या ये कॉलेज आपके बीटेक सीएससी के लिए वर्थ इट ऑप्शन है या नहीं है? इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इसकी रियलिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। सो निशांत, आपका जेई या फिर पीसीएम में क्या था जो आपका? मैंने जेई मेंस क्वालिफाई करा था और मेरे जेई मेंस में परसेंटाइल थे 83 पॉइंट समथिंग थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि ऑफ कोर्स मेंस में 83 थे, तो मैंने फिर काउंसलिंग के लिए भरा था और एनआईटी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। उसके बाद फिर मैंने दूसरे कॉलेजेस भी डाले थे, जेएल बजाज और भी कुछ थे, बट एनआईटी मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया और फिर सेकेंड राउंड में भी एनआईटी ही मिला क्योंकि मेरा ये था कि एनआईटी और जेएल बजाज में से कोई सा लेना है, क्योंकि ये दोनों मैंने रिव्यू वगैरह देखे थे और मेरे कुछ दोस्त यहाँ के रहने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि यू कैन गो फॉर एनआईटी और जेएल बजाज इधर। सो जेएल बजाज का सीएससी का लेकिन कट ऑफ हाई है। सो कट ऑफ हाई है उसका, तो आपको ईसी या आईटी समथिंग। हाँ। सो मे आई नो द फी स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक सीएससी? The fee structure of CSE AI is for first year you have to pay like around 1,85,000, in which 20,000 included, which you have to pay earlier during counseling, and after first year, like for second year, third year, and fourth year, the fees are around 1.55, then 1.5, and like this. Okay. If I ask about the infrastructure, campus facilities, what's your thought? The infrastructure of NIT, this campus from second year onwards, is good as compared to first year because it's like somewhat congested. The classrooms are not as big as these classrooms are, so it But feels not too modern. not too modern, but it doesn't even like we don't care about the classes much because the main thing we are focused about is our teachers, our lectures, what we are able to understand, how we are able to progress. So I think I am getting what for what I have paid, and I think it's worth it. Like Okay. 90. So faculty supportive है? Faculty is very supportive. They are like strict in matter. You can't fool them. Like some students think to fool them and like bunk classes. Teachers are not like that. But if the problems are really good, means you have आपको कोई serious problems है ऐसा कुछ है, तो in that case they are very supportive because myself I am suffering from sinusitis. So I was unable to attend classes from few weeks, 1 or 2 weeks. So I was detained in second session. So मेरी attendance थोड़ी सी down हो गई, तो उस वजह से काफ़ी ऐसा सीन हो गया था कि मैं एंड सेम में पेपर दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, बट द स्टाफ्स आर वेरी सपोर्टिव. There is one teacher, Monica ma'am. She is our coordinator. She supported me very well, and because of her, because of HOD, they are giving permission. They are conducting extra classes for me and some other students so that they can fulfill their attendance criteria, which are really helping. Okay. Now you can say you can tell me about the average package and its goods in terms of ROI or not. The average package for NIT this year was, I think, 8 lakhs per annum, and the highest was around 32 or 35 lakhs. Around 35 lakhs, I think. 4 साल की बीटेक में कैंपस लाइफ मैटर करती है? Of course मैटर करती है मैम। आप यहाँ पे सिर्फ मतलब रोबोट नहीं हो ना, आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, सब कुछ आपकी कॉलेज लाइफ होती है 4 साल की, आप उसे एंजॉय भी करोगे, आप हार्ड वर्क भी करोगे, अपना प्लेसमेंट सब कुछ, तो ओवरऑल सब कुछ मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि डल सा कॉलेज लाइफ जा रहे हो आप, बिल्कुल प्लेसमेंट। तो आपकी कैंपस लाइफ
अभी तक अच्छी चल रही है मेरी। आई हैव गुड फ्रेंड्स एंड गुड ग्रुप्स लाइक सो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, नॉट मच बट समवॉट। अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी पड़ती है? 75%, 75% नॉट लेस 75। एंड अगर टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका कुछ क्राइटेरिया रहता होगा अटेंडेंस का? सेम 75% क्राइटेरिया रहता है एंड रेस्ट अदर्स आर योर स्किल्स and maybe somewhat your CGPA, what you are maintaining during your semesters, your कोडिंग your- कल्चर yeah, your skills matters the most with the CGPA that you are maintaining. और कोडिंग कल्चर है कुछ हाँ, आप सिखा रहे yeah. हैं AI? हमारे जैसे मेरा फ्रेंड है वो उसका खुद का ग्रुप है, तो ही कंडक्ट्स ऑल द कोडिंग प्लेटफॉर्म, लाइक इसने हैकेथन कंडक्ट करा रखे हैं हमारे कॉलेज में, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे अगर किसी का स्टार्टअप है उसके लिए इवेंट्स होते हैं। आप अपना आइडिया दे के अगर अच्छा लगा तो कॉलेज खुद सपोर्ट करता है आपको कि आप अपने आइडिया पे बिल्ड करो, उसको और बेटर करो, और आगे अगर कुछ बेटर कर पाओ तो ठीक है। और ऐसे भी अगर किसी को कोडिंग तो हैकेथन्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बाहर से रिक्रूटर्स वगैरह। व्हाट्स योर थिंक, लाइक अगर किसी बच्चे का जेईई में 12th में अच्छा नहीं है और वो एनआईटी भी नहीं आ सकता, तो आपके नियरेस्ट काफी कॉलेजेस है, लाइक आईएलएम यूनिवर्सिटी है, बैनेट है, हाँ। सो वो क्या अपना बीटेक वहां से परस्यू कर सकता है? To be honest, your skills matter the most. At the end, you have to do it all by yourself. But colleges matter, but like they somewhat help in your studies and your progress. नॉट इनटू प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट में उतना नहीं है, स्टडी में बहुत सपोर्ट करते हैं। They like they help Mock in interviews. they help in placements if you have better college, like and for NIT. कंपनीज कम, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं आती है, बिल्कुल कंपनियां आती हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स के पैकेज लगते हैं, हमारे सीनियर के काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेज लगे भी हैं। बट योर क्वेश्चन इज इफ समवन्स परसेंटाइल इज नॉट मच और ही और शी डजंट वांट उस सिचुएशन में ड्रॉप लेने से बेटर है कि वो एक कॉलेज। हाँ, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट IIM और बेनेट, बिकॉज IIM बेनेट में यहाँ तक आइडिया है उनके पैकेजेस थोड़े से कम है शायद, और अटेंडेंस का भी उतना वहाँ पे मतलब ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि अटेंडेंस की स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो बच्चे सोचे कि वहीं चले जाते हैं, ऐसा। अगर आप कॉलेज अटेंड नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। एडमिशन मोड कहना है। हाँ, एडमिशन मोड, या तो आप काउंसलिंग से आ सकते हो या तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। मैं काउंसलिंग से आया हूँ, डायरेक्ट एडमिशन वाले बहुत कम थे बच्चे हमारे क्लास में। आई थिंक ही फ्रॉम डायरेक्ट एडमिशन। क्या करना है? 12 70 पे मिल जाता है 90, ठीक है। CSC राइट, सो मतलब अगर तुम्हारा भी 78 नहीं, CSC है। I have been changed, so I got a preference. And with that preference, I was having 2 mark sheets at the 17 this time. So I was preferred more than the 12 PCM students, and I got to go and upgraded to CSE again. ओके ओके, मतलब फिर भी तुम्हारा 80 PCM होना चाहिए फॉर CSC। If you have to be in the CSE go, you have to go around 85 to 90%. ओके ओके, मतलब अगर आप 12th पे बेसिस पर आ रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन योर 85 to 90 PCM परसेंटेज फॉर CSC कोर, एंड इफ यू आर कमिंग थ्रू JEE एंड उसमें आपका अबव 75 परसेंटाइल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर यू विल गेट द सीट इन CSE, IIT, एक्सेट्रा। बाकी वो डाउट रहे तो तुम मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो। मतलब एक माइनस और एक प्लस पॉइंट जो तुम बताना चाहो अपने जूनियर्स को जो आने वाले हैं। माइनस पॉइंट जहाँ तक मुझे लगा है कि फर्स्ट ईयर में मेरे 85% क्राइटेरिया अटेंडेंस का, सो दिस इज नॉट मेजर इशू फॉर मी। गेट्स बंद रहते थे दिन भर, तो आप एक बार सुबह में आओ तो सीधे लास्ट में निकलते थे। फ्रीडम इतनी नहीं है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी बड़े हो, ऐसा बच्चे नहीं हो, तो ये भी जानते हैं। पॉजिटिव ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी टीचर को पर्सनल में जाओगे। इन क्लास में रहते हैं तो उनको एक डिग्री मेंटेन करना होता है कि एज अ टीचर, बट इन पर्सनल आप जाओगे तो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। एनवायरनमेंट कैसा? एनवायरनमेंट अच्छा, एनवायरनमेंट देयर आर नो रैगिंग। ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है रैगिंग के खिलाफ, किसी की रैगिंग नहीं होती यहाँ पे। ये लोग डायरेक्ट सस्पेंशन ऑर्डर करते हैं अगर किसने कंप्लेन ऐसा कर दी तो बहुत से कॉलेजेस में ऐसे रैगिंग के भी इशू होते हैं। मैंने NIT में आने से पहले मैं ये सब भी चेक कर रहा था, तो रैगिंग के केसेस मुझे पता चल रहे थे ऑनलाइन में, इंशाल्लाह या कहीं तो मैं देख रहा था रिव्यू। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल रैगिंग से बहुत स्ट्रिक्ट है। तो किसी भी जूनियर को ऐसा नहीं लगेगा कि आप यहाँ आ रहे हो, सेकेंड ईयर में आ रहे हो तो आपको
फोर्थ ईयर में कोई थर्ड ईयर का आपको रैंक ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यार काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया इन्होंने, बता भी दिया है, प्लेसमेंट भी, एवरेज भी, हाईएस्ट भी, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सर्टिफिकेशंस भी है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी मिल जाएगा। बाकी और कोई डाउट रहेगा तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।